Sage Anandam. Good morning, students. Today, my video is on data wrangling in Python. Now, what do you mean by data wrangling? एक तरीका जिससे मैं किसी भी रॉ डेटा को, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए एआई वर्ल्ड में दे नीड डेटा, right? And data need to be cleaned, processed, it need to be gathered at one place, it needed to be transformed in a proper format, right? ताकि हम उसे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, एक प्रॉपर फ्यूचरली इंडस्ट्री बेनिफिट ओरिएंटेड डिसीजन ले सके विद इन अ लेस टाइम. डेटा रैंगलिंग को डेटा मांजिंग भी कहा जाता है. Now, when we talk about the importance of data wrangling, we talk about one of the projects, right? Suppose karo, you need a book selling website which wants to show some top selling books of different domains. But according to the user preference, for example, agar ek new user search karta hai for some kind of motivational books, then they want to show those motivational books which sells the most or have a high ratings. But on their website, there are plenty of raw data from different users. Here come the concepts of data munging or data wrangling, which is used. As you know, data wrangling is not by the system itself. This is a process done by a data scientist, and data scientists will wrangle data in such a way that they will sort the motivational books that are sold more and have high ratings or users buy this book with these packages of books. On the basis of that, the new user will make a choice. Let's explain the importance of data wrangling. Data wrangling in Python, data wrangling actually क्या होता है? Data scientist और data analyst दोनों टाइप के जो प्रोफाइल्स हैं वो डेटा रैंगलिंग करते हैं. हम यूज करते हैं pandas framework, which is one of the library in Python. It is actually used in data wrangling in 100% scenarios, right? And pandas एक open source library है जो कि किसी भी data analyst और data scientist द्वारा यूज किया जा सकता है. It is basically used for the processes like data sorting and filtration, or we can say data grouping as well. Data wrangling in Python deals with the functionalities like data exploration. Data exploration में होता क्या है? The data is studied, analyzed and understood by visualizing representation of data. We deal with missing values. Most of the data sets having a vast amount of data which contains missing values, or we can say NaN values, right? They needed to be taken care or by replacing them with mean, median and most frequent values of the column. We can simply drop the row itself. जितने भी NaN के values कोई भी row contain करता है तो हम उसे drop भी कर सकते हैं. Next is data reshaping. Now, what is data reshaping? Here we are coming. You can see, yes, okay. इस पे जब हम click करते हैं तो यहाँ पे एक word है. Let me tell you where. This is data reshaping. Okay, इसको मैं थोड़ा सा block कहाँ गया? ओके ये कर देते तो आपको ओके सो दिस इज डेटा रीशेपिंग है ना. अब डेटा रीशेपिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस जहां पे डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, जहां पे हम नया डेटा ऐड भी कर सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ठीक है. रीशेप करने के अलावा हम फिल्टरिंग भी करते हैं. डेटा फिल्टरिंग में क्या होता है? कभी कभार ना हमारे डेटा सेट्स में ना कुछ अनवांटेड रोज और कॉलम्स आ जाते हैं जो कि जरूरत पड़ने पे या तो हटाए जाए या तो फॉर्मेट किए जाए. ठीक है. हमारे पास और भी ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जिससे हम रॉ डेटा पे मोर एंड मोर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पर्पस लाइक डेटा एनालिसिस या मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स है वो यूज कर सकते हैं. चलो इतना तो I hope you people got to know about it. Now,
अगर हम बात करें डेटा एक्सप्लोरेशन की, तो हियर आर सम प्रोजेक्ट बेसिस सिनेरियो है आपके लिए। मैंने पहले ही कुछ कोड्स डाल दिए हैं सो दैट एक इजी टास्क हो जाए। ओके, right now I'm working in Google Colab. Now why we are working in Google Colab, ताकि हम रन टाइम एनवायरनमेंट में काम कर सकें। मैं आपसे ये शेयर भी कर सकती हूँ, इफ यू वांट दिस कोड इन योर गूगल कोलैब, आप कमेंट में अपना मेल आईडी डाल सकते हैं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर सकूं। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट डेटा एक्सप्लोरेशन वी नीड डेटा, है ना। और डेटा सेट हमारे पास डेटा फ्रेम में आता है, राइट। तो सपोज करो तुम्हारे पास अभी एक्सेल शीट नहीं है ना, और मुझे एक डेटा का पूरा एक सेट बनाना है जिसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं, ताकि हम उसे विजुअलाइज कर सके टेब्यूलर फॉर्मेट में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम एक पांडास पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये जो हैशटैग है ये कमेंट है, ये रन टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता, ये एक्चुअली अवॉइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे पांडास। ठीक है, हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने इसे एक एलाइज नेम दे दिया है पांडास को, जिसको हम पीडी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि कुछ डेटा मैं असाइन करूं, तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया है डेटा नाम का। ठीक है, ये यूजर डिफाइंड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, है ना। कैसे पता चलेगा क्या डिक्शनरी है और क्या लिस्ट है? जहां पे कर्ली ब्रेसेस आ गया वो डिक्शनरी, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया वो लिस्ट, राइट। तो हमने क्या किया, नेम नाम का एक की लिया जिसमें हम, यू पीपल नो अबाउट दिस कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होता है। तो नेम क्या है, की है, एज की है, जेंडर की है और मार्क्स की है। ठीक है, हम 4 कॉलम्स ले रहे हैं, नेम, एज, जेंडर, मार्क्स। कॉलम के ये फील्ड के मतलब जो प्राइमरी एट्रीब्यूट्स है ये इनके नाम है। अब उसके अंदर वैल्यू हमने क्या क्या दे दिया, जय, प्रिंसी, गौरव, अनुज, रवि, नताशा, रिया। ठीक है, और एज हमने सबका डिफाइन कर दिया, हमने ऑलमोस्ट 7 वैल्यूज लिया है, 7 में डिफाइन कर दिया। जेंडर में भी देखो, जब भी हम कैरेक्टर्स लेते हैं या स्ट्रिंग वैल्यूज लेते हैं हम सिंगल अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज लेते हैं तब हम न्यूमेरिक में अपोस्ट्रोफीज की जरूरत नहीं होती। ओके, तो मार्क्स में हमें 90, 76 कुछ फील्ड्स हमने खाली छोड़े क्योंकि मे बी हमें इनके मार्क्स नहीं पता, सपोज अभी के लिए। ठीक है, अच्छा, मैं चाहती हूँ ये जो पूरा डिक्शनरी है ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम कोड लिखेंगे। हमने क्या किया है, डीएफ नाम का एक वेरिएबल लिया है। ठीक है, एक्चुअली डेटा फ्रेम पूरा नहीं लिखना था मुझे, तो मैंने डेटा फ्रेम की जगह डीएफ लिख दिया। तो डीएफ नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने पांडास जो लाइव फॉर्म है पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये एक बिल्ट इन फंक्शनैलिटी है डेटा फ्रेम, उसके अंदर मैंने पास किया है डेटा को। ठीक है, ये पूरी वैल्यू हमारी df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम के थ्रू डेटा फ्रेम में टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। अब हम इसको डिस्प्ले करा देते हैं। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हम प्ले में क्लिक करते हैं तो यहां से एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा कनेक्ट होने में टाइम लगता है। ओके, जब आपका ये ग्रीन टिक आ जाएगा यू विल कम टू नो कि एग्जीक्यूट हो गया है। जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो हियर इज द आउटपुट। ठीक है, आई होप आपको आउटपुट दिख रहा है। हियर इज द आउटपुट। देखो, हमने नेम कॉलम जनरेट कर लिया, एज, जेंडर, मार्क्स, है ना, ये आपने वैल्यूज खुद से दी थी और ये कन्वर्ट हो गया मेरा टैबुलर फॉर्मेट में। नाउ नेक्स्ट टास्क हमारा ये रहेगा कि वी विल बी डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज इन पाइथन। As we can see from the previous output, there are some NaN values, है ना, in the marks column, which is the missing value in the data frame. That is going to be taken care of in data wrangling by replacing them with column mean, है ना। हम यहाँ NaN नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि खाली जगह मेरे डेटा साइंटिस्ट को विजुअलाइजेशन में दिक्कत करेगा। कोई देखो, अगर मैं
समझने का तरीका क्या होता है ना? हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल लेंगे c, उसको इक्वेट करेंगे एवीजी वेरिएबल से, उसको अभी के लिए 0 रखेंगे, ठीक है। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, किसमें? मार्क्स के अंदर, ठीक है। फॉर के अंदर हम एक इफ वर्ड का यूज कर रहे हैं, इफ लॉजिक का, ठीक है। अभी इफ किस लिए यूज होता है, यू नो, str हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट है ना, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर द गिवन एरर। जो भी एरर है, NaN क्या है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है, ऑब्वियस है। तो ये उसको क्या करता है, हमें हेल्प करता है फेच करने में। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप चलाया, एल वेरिएबल इफ के थ्रू पिच किया। अच्छा, डॉट इज न्यूमेरिक फंक्शन लगाया, सी प्लस इक्वल्स टू 1, एवरेज प्लस इक्वल्स टू ELE, एन एवरेज डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू सी, है ना। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप के अंदर एक इफ स्टेटमेंट चलाएगा। अगर वो उस कहते हैं कि अगर एस टी आर कैलकुलेट करता है, तो वो उन न्यूमेरिक वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनैलिटीज ऐड करता जाता है, ठीक है। जहां पे न्यूमेरिक मिल रहा है ऐड करता जा रहा है, जहां पे NN मिल रहा है वो से कन्वर्ट करके इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड, ठीक है, उसके मीन से रिप्लेस कर रहा है। तो NN कहाँ कहाँ था, गौरव पे था NN, और नताशा पे था, ठीक है। तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे, अब तो वो कैलकुलेट तो हो गया, तो ये गौरव और ये नताशा, देखो दोनों में ही इसका जो हम मीन निकाल रहे थे, जो एवरेज निकाल रहे थे, वो उस वैल्यू से रिप्लेस हो गया। अच्छा, एक और चीज, रिप्लेस करने का तरीका क्या होता है, मैंने अपने ओरिजिनल DF वेरिएबल जिसके अंदर मैंने पूरा डेटा फ्रेम लोड करके रखा था, उसमें मैंने एक रिप्लेस फंक्शन चलाया, और किसको रिप्लेस करना था, NaN को, और किससे रिप्लेस करना था, वैल्यू इक्वल्स टू AVG, क्योंकि AVG यहाँ पे है। यहाँ से ये पूरा कोड होके फिर हम फाइनली हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो विल बी गेटिंग दिस, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं है, अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर क्या है, मीन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, डेटा रिप्लेसिंग भी एक फंक्शनैलिटी होती है डेटा रैंगलिंग में। सपोज करो यू आर यूजिंग अ जेंडर कॉलम एंड वी वांट टू रिप्लेस द जेंडर कॉलम बाय कैटेगराइजिंग देम इन डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो इधर, तो जेंडर्स में क्या है, MF, ये क्या है, कैटेगोरिकल वैल्यू, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, किसी भी डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के पास अगर कैटेगोरिकल वैल्यू है, तो वो उसके साथ काम तो कर सकता है, लेकिन इट्स बिट टफ, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो व्हाट वी डू, वी मोस्टली कन्वर्ट द कैटेगोरिकल वैल्यू इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बीइंग अ डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, वी मस्ट इंश्योर कि हम ज्यादा से ज्यादा कैटेगोरिकल वैल्यू को न्यूमेरिक में चेंज करें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, डेटा रैंगलिंग में रिप्लेस हो सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने DF नाम का डेटा फ्रेम जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें हमने जेंडर कॉलम पकड़ा है, ठीक है, और उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस रिप्लेस करने के लिए मैप फंक्शन यूज होता है, ठीक है। फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, जहां जहां मेल लिखा है उसको 0 से करेंगे, जहां जहां F लिखा हुआ है उसको 1 से करेंगे। और हमने उसका टाइप भी कंफर्म कर दिया है कि उसका टाइप फ्लोटिंग पॉइंट पे ही रखा जाए, ठीक है। न्यूमेरिक में हम मोस्टली फ्लोटिंग पॉइंट से ज्यादा डील करते हैं, और फिर हम इसे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं। तो जब हम डिस्प्ले करा रहे हैं, यू कैन सी 0.0, 1.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको टाइप दे दिया था फ्लोट, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये बहुत इजी था समझने में। नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि हम फिल्टरिंग डेटा करें, ठीक है। तो फिल्टरिंग डेटा में क्या होता है, फिल्टरिंग डेटा इन डेटा रैंगलिंग, सपोज देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द डिटेल रिगार्डिंग जेंडर, नेम एंड मार्क्स ऑफ द टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स, है ना। जो बेस्ट स्कोरर्स हैं उनके नाम, जेंडर और मार्क्स पता चल जाए। So here we need to remove some of using the pandas slicing method in data wrangling. अभी अगर मुझे unwanted data हटाना है, तो we need to remove, and pandas में एक बहुत ही अच्छा slicing method है। सपोज करो हमें स्कोर करना है, तो स्कोर करने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स निकालना है ना। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम DF
वेरिएबल ऑब्वियस है, उसी में करना रहेगा, वही टेबुलर डेटा सेट बनाना है हमें। तो डीएफ मार्क्स एक कॉलम है, ग्रेटर देन 75 डॉट कॉपी, वो उसको कॉपी करता जाएगा, जो जो 75 से ऊपर है उन वैल्यूज को कॉपी करेगा। नाउ व्हाट इट इज सेइंग कि अब मुझे वहां से एज हटाना है, फिल्टर भी करूंगी लेकिन साथ ही साथ एज भी हटाना है ना, वी नीड टू फिल्टर आउट। तो ड्रॉप हम क्या करेंगे, कुछ भी चीज रिमूव करने के लिए, कोई भी कॉलम रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप। ठीक है, और क्या ड्रॉप करना है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो आई गेस यू हैव गॉट इट, है ना। इन प्लेस हमने ट्रू कर दिया है, अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, फॉल्स भी ले लेगा। ठीक है, फिर हमने डेटा सेट को शो किया है, डिस्प्ले किया, तो हमें जितने भी 75 के ऊपर के स्कोरर थे उनका आउटपुट मिल गया। ठीक है, okay. Hence, we have finally obtained an efficient data set that can be further used for various purposes. That we have seen the basic of data wrangling using Python and Pandas. Below, we will be discussing some of the various operations using which we can perform data wrangling. Okay, data wrangling is using a merge operation. Merge operation is used to merge two rows into the desired format. Syntax pd dot merge data frame 1 data frame 2, है ना, इस तरीके से हम merge करते हैं. Here the field is the name of the column which is similar in both data frame. For example, हम एक teacher का दो, suppose that a teacher has a two type of data. The first type of data consists the detail of students. The second type of data consists of pending fee status, which is taken from the account office. So the teacher, we will use the merge operation. है ना? Here, in order to merge the data and provide it meaning, so that teacher will analyze it easily and it will reduce the time and the efforts of the teacher for a manual merging. Creating first data frame to perform merge operation using data wrangling. Now, what do you mean by data wrangling? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डेटा फ्रेम्स. अच्छा, जब हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया था वो पांडास किया था, है ना, हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमने एक डिटेल नाम का क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम डेटा फ्रेम फंक्शन चला रहे हैं. 3 कॉलम लिया है, आईडी, नेम, ब्रांच. ठीक है, इसमें ये वैल्यूज हैं. अब जब इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें इस तरीके से एक टैबलेट डेटा सेट मिलेगा, है ना, ये हम करा चुके हैं. एक और बार हम एक और डेटा फ्रेम बनाएंगे जो कि स्टूडेंट के फी स्ट्रक्चर का बताएगा, है ना. तो हम फी स्टेटस लेंगे, इसके अंदर फिर से वही सेम फंक्शनैलिटी चलाएंगे, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, उसके अंदर हम आईडी ले रहे हैं और पेंडिंग ले रहे हैं. ठीक है, अच्छा, एक चीज देखी होगी, दोनों टेबुलर डेटा सेट में हमने आईडी लिया है. क्यों? क्योंकि दोनों को हमें क्या कराना है, पहले रिलेट कराना है फिर मर्ज कराना है ना. अब क्या करना है, हम यूज करेंगे मर्ज ऑपरेशन. कैसे यूज करते हैं, देखो, ये हमने क्रिएट किया था. ठीक है, दोनों डेटा फ्रेम्स क्रिएट किया, मेन है ये वाला. जब हमें मर्ज करना होगा तो हम लिखेंगे पीडी डॉट मर्ज डिटेल टेबल और फी स्टेटस. ठीक है, ये दोनों टेबल्स हम मर्ज करा रहे हैं, लेकिन किस पे बेस्ड होके, आईडी दोनों में सेम था. तो जब हमने मर्ज कराया तो हमें इस तरीके से डेटा सेट मिल गया. ये देखो, दो, एक ये वाला था, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ था आईडी, नेम, ब्रांच, और सेकंड कॉलम में आईडी और पेंडिंग. मतलब ऐसे बच्चे जिनकी आईडी, नेम, ब्रांच के साथ साथ उनकी पेंडिंग फीस भी हमें दिखने लगे, है ना. तो ये हमें मिल गया इस तरीके से. अच्छा, डेटा wrangling is using grouping method. कोई भी grouping method in data is used to provide results in various of groups taken out from large data. This method of pandas is used to group the outset of data from the large data set. For example, एक car selling company है, ठीक है, and this company have different brands of various car manufacturing companies like Maruti, Toyota, Mahindra, Ford, etc.
have data on where different cars are sold in different years. So the company wants to wrangle only that data where cars are sold during the years 2010. For this problem, we use another data wrangling technique, which is a pandas group by method. ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर से हमने pandas डाला, एक डेटा सेट बनाया कार सेलिंग डेटा नाम का, ठीक है, ये पूरा डेटा फ्रेम बनाया। अब हमने क्या किया, उस डेटा फ्रेम को पहले उस डेटा सेट को हमने कन्वर्ट किया डेटा फ्रेम में, फिर हम प्रिंट करा रहे हैं डीएफ, ठीक है। तो जब हम प्रिंट कराएंगे तो इस तरीके से टेबुलर डेटा सेट हमें दिखने लगेगा। क्लियर है? नाउ आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम वी आर यूजिंग अ ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। अब ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज कर रहे हैं, अच्छा किस पे बेस यूज करना है, 2010 पे बेस, 2010 का जितना भी डेटा है वो हमें देखने लगे। तो कार सेलिंग डेटा जो ऑलरेडी था, ये देखो इन लोगों ने फिर से बना दिया है ना, तो फिर से एक हमने डेटा फ्रेम कन्वर्ट किया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि जितने 2010 के हैं ना सिर्फ उतना दिखे, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे खुद का, उसके अंदर चलाएंगे df.groupby और ईयर वाइज, क्योंकि यहाँ पे ईयर कॉलम है, ये देखो ये ईयर कॉलम है, तो इसमें से जितने भी 2010 के डेटा सेट होंगे वो उठ के आ जाएंगे, है ना। और हम ग्रुप कर रहे हैं ईयर कॉलम से, तो ग्रुप कर रहे हैं, लेकिन ईयर कॉलम में कौन से वैल्यू से ग्रुप करना है, हमें करना है 2010 से। तो जितने भी 2010 के डेटा सेट है वो हमें दिखने लगेंगे, है ना। मारुति, होंडाई, महिंद्रा, फोर्ड, टोयोटा, ये हमारे वो डेटा सेट्स हैं जो 2010 पे सोल्ड हुए थे, कितने सोल्ड हुए वो भी दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, data wrangling is also used for removing duplication, pandas duplicate method, which is helps to remove duplicate value from the large data. An importance of data wrangling is removing duplicate value from the large data set. Suppose karo, we are having one syntax data frame dot duplicated subset equals to none, keep equals to first. Here subset is the column value where we want to remove the duplicate data. In keeping we have three options. If keep equals to first, then first value is marked as the original, rest of all if occurred will be removed as it is considered duplicate. If keep is equals to last, then the last value is marked as the original, rest the above same values will be removed as it is considered duplicate values. If keep equals to fall, all the values which occur more than once will be removed as all are considered duplicate values. For example, एक यूनिवर्सिटी है जिसको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, and in order to participate students have to fill in their details in the online form so that they can contact them. It may be possible that a student will fill out the form multiple times. It may cause difficulty for the event organizer if a single student will fill in multiple entries. The data that the organizer will get can easily be wrangled by removing duplicate values. Creating a student data set who wants to participate in the event. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डेटा सेट लिया है स्टूडेंट का, ठीक है, उसमें लिया हमने नेम, रोल नंबर, ईमेल, ठीक है। अब हम इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हमें प्रिंट करा देंगे। ये देखो एक टेबुलर डेटा सेट बन के आ गया, है ना। अभी इसमें से हमें क्या करना है, डुप्लीकेट डेटा निकालना है, ठीक है। अब डुप्लीकेट डेटा निकालने के लिए सेम वही वाला है कि हमें पहले डेटा फ्रेम क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे आके सेम था, है ना। अब here df.duplicate list duplicate entries in roll number so that not is placed in order to get non-duplicate values. नॉन डुप्लीकेट वैल्यू को अगर दिखाना है, शोकेस करना है, तो पहले तो नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज हमें निकालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, उसी में नेगेशन ऑफ डीएफ निकाला, ठीक है, जो डुप्लीकेट नहीं है। तो नेगेशन ऑफ डीएफ डॉट डुप्लीकेटेड रोल नंबर। तो हमने जब इसको प्रिंट किया, ठीक है, जब हम इसको प्रिंट करेंगे, वेट, इसके लिए लेट्स लेट्स डू फ्रॉम हियर एज वेल, इधर ये वाला एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल।
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस डेटा सेट को जब हम चलाते हैं, सपोज हमने एग्जीक्यूट किया, हमारे पास नॉन डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। अब अगर ये वाला एग्जीक्यूशन चलाने से पहले इस एग्जीक्यूशन को देखते तो हमारे पास ऑलमोस्ट 11 एंट्रीज थी, है ना, 11 से 12 एंट्रीज थी, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज होता है। जब हमने नॉन डुप्लीकेट चलाया तो देखो हम लोग 12 से कितने आ गए, 9 पे। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो रिमूव हो गए, है ना। अच्छा, when we create a new data set using the concate of two data set in data wrangling, we can join two data frames in several ways. For our example, in concatenating two data set, we used pd.concatenate function. Creating two data frame for concatenation कैसे होगा? Suppose करो हमने दो डेटा सेट बनाया, डेटा 1, डेटा 2, ठीक है। अभी इसको जोड़ना है, वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अ प्रॉपर डेटा फ्रेम। तो df.pd.data फ्रेम है ना, डेटा 1 को इंडेक्सिंग के साथ, देखो हम चाहते हैं कि 0 से इंडेक्सिंग हो, तो हमने दोनों को कन्वर्ट किया। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो व्हाट वी विल सी कि हमारे पास दो डेटा फ्रेम बन गया है ना। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक्सिस 0 पे कॉन्कनेट हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, एक रेस नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें कॉन्केट फंक्शन चलाया और मेरे दोनों डेटा फ्रेम को मैं कॉन्केट कर रही हूँ। जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो हमारे दोनों डेटा सेट दो अलग अलग टेबल के थे, है ना। ये दोनों डेटा फ्रेम क्या हो गए, एक साथ हमें दिखने लगे। नाउ वी कैन सी दैट कि हमारे डेटा 1 डज नॉट हैव सैलरी कॉलम, सो ऑल 4 रोज ऑफ डेटा फ्रेम रेस्ट आर NaN वैल्यूज। तो आई होप कि ये बहुत इजी ट्यूटोरियल रहा होगा आप लोग के लिए। फॉर एनी क्वेरीज, अगर आप लोग को चाहिए कि ये वाला कोलैब मैं आपसे शेयर करूं, तो आप मुझे अपना कमेंट पे अपना मेल आईडी डाल सकते हैं एंड आई विल रिस्पॉन्स बैक। मैं आपसे ये कोलैब शेयर करूंगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।